We start next module, that is what? Laplace transform 2. Laplace ट्रांसफॉर्म 2, इसको इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए, लेट अस डू द definition of this, then we go for the problem. What is the Laplace inverse? If Laplace transform of the function f of t is equal to f of s, then f of t is called, then the function f of t is called the inverse Laplace transform of the inverse Laplace transform of function f of s. Function f of yes, it is denoted and defined by, it is denoted and defined by Laplace inverse of function f of s, and this equal to what? f of t. ठीक है, ये तो आपका सिंपल डेफिनेशन हो गया। now here we write Laplace transform and here inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform. Okay, inverse Laplace transform. What is the Laplace transform of exponential function? e raised to minus at, simply 1 upon es plus a। ठीक है, तो इनवर्स आपको क्या मिलेगा? दिस एल को इस साइड शिफ्ट करो आप, सो एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए, द इनवर्स ऑफ दिस इज ई रेस टू माइनस ए टी। ठीक है, सिमिलरली Laplace transform of e raised to a t, and this equal to 1 upon s minus a, here s is greater than a, then Laplace inverse of this function is what? Laplace inverse of 1 upon s minus a. What is the Laplace inverse? Simply e raised to a t. ठीक है, and what is the Laplace inverse of sin a t? Laplace transform of sin a t is what? A upon s square plus a square. तो Laplace inverse of 1 upon s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एज कांस्टेंट है तो इस साइड चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन ए साइन ए टी। ओके, एंड फोर्थ वन, Laplace transform of cos a t is simply s upon s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे s आपका क्या है? ग्रेटर देन 0 है, सो Laplace इनवर्स ऑफ s upon s square and plus a square is how much? This is simply cos, not cot, simply cos of 80। ठीक है, simply cos of 80। now fifth one, Laplace transform of sin hyperbolic at is a upon s square minus a square,
So S is greater than mod of A. So Laplace inverse of this will be Laplace inverse of this is 1 upon S square minus A square is 1 upon A sin hyperbolic A t. ठीक है. And sixth one, Laplace inverse of Laplace transform of first cos hyperbolic A t is S upon S square A square. S is greater than mod of A. So Laplace inverse will be what? S upon S square minus A square and simply cos hyperbolic A t. ठीक है. Now seventh one, Laplace transform of t raised to n minus 1 is what? N minus 1 factorial divided by s raised to n. ठीक है. And what is the inverse for this? Inverse of this is what? 1 upon s raised to n equal to t raised to n minus 1 divided by n minus 1 factorial. ठीक है. So these are the formulae. These are the inverse formula of Laplace transform. So we must have to remember this. चलिए इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं. तो उस तरह से आपको क्या मिलेगा? नोट एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस का इनवर्स कितना मिलेगा? 1 मिलेगा. ठीक है. Now let us do the problem based on this, then you will understand the concept better. नेक्स्ट पेज जाएंगे. एग्जाम्पल नंबर 1. Find the inverse Laplace transform of the following. Find the inverse Laplace transform of following. Number 1. Find the inverse Laplace transform of following. Number 1 is 2s plus 3 and divide by s square plus 9. And number 2 is 3s plus 5 divide by 9s square minus 25. ठीक है. ये है. तो देखो कैसे करते हैं इसको. सॉल्यूशन नंबर 1. What is given to you? You have given Laplace transform of the function f of t. F of t is given to you. What is the Laplace transform? 2s plus 3 divided by s square plus 9. Now see here, on the numerator there is a plus sign, so we separate this. We separate denominator. Therefore, Laplace transform of f of t is equal to 2s upon s स्क्वायर. इसको 9 है, 9 को क्या ले सकते हैं हम? 3 स्क्वायर ले सकते हैं. एंड प्लस 3 डिवाइड बाय एस स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं. नाउ टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड और अप्लाइंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म on both side.
चलो अप्लाई करो। इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो इधर से एल हट जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका, एफ ऑफ टी बचेगा। ठीक है। एंड ईयर एल इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज व्हाट, 2s अपॉन एस स्क्वायर एन प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से भी एल इनवर्स ऑफ 3 अपॉन एस स्क्वायर एन प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है। नाउ सी हियर, टू कांस्टेंट है, टेक टू आउटसाइड, सो एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर एन प्लस 3 स्क्वायर and plus 3 constant we taking outside, so L inverse of 1 upon s square plus 3 square. ठीक है। and what is the inverse of this, what is the inverse of this, that is what, cos a t, a आपका कितना है 3 है और t plus 3, and what is the inverse of this is 1 by 3 sin 3t, sin 3t, these three will cancel, so you will get 2 cos 3t and plus sin 3t. So this is your inverse of the given Laplace transform. You got it? How to solve? समझ में आया आपको? बोलो yes or no? यस सर। चलिए सिमिलरली आप सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सिमिलरली हम सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे कैसे करते हैं। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम सेकेंड पेज पे करेंगे। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 आपको क्या दिया है, गिवन Laplace transform of the function f of t। ओके, ये फंक्शन आपको दिया है, दिस इज वॉट 3s प्लस 5 डिवाइड बाय 9s² माइनस 25। ठीक है। देखिए हमारे फार्मूला में क्या है, जो एस स्क्वायर है उसके बगल में कुछ नहीं रहता है। ठीक है। यहाँ पे 9 आ गया है अनवांटेड, तो इसको मैं हटाऊंगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक ए कॉमन, सो देयर फोर Laplace transform of f of t and this equal to 3s plus 5 divided by 9, I'm taking outside, 9 square minus 25/9। ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा ऊपर वाला। नाउ वी सेपरेट दिस, वी सेपरेट, यहाँ पे देखो प्लस साइन है ऊपर और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो वी कैन सेपरेट दिस, सो 3s डिवाइड बाय 9 एस स्क्वायर माइनस 25/9 एंड प्लस ऊपर वाला टर्म 5, सॉरी 5, ऊपर वाला टर्म इज व्हाट 5 डिवाइड बाय 9 एस स्क्वायर माइनस 25/9। ठीक है। यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ से ये कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1/3 एस स्क्वायर एंड माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, एंड प्लस 5/9 ऐसा लिखो, 1 इसको हम लिखेंगे एस स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ अप्लाइंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, सो applying inverse Laplace transform on both sides, अप्लाई करेंगे तो इधर से एल हट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी मिलेगा, और एल इनवर्स ऑफ 1/3 यस अपॉन आपको क्या मिलेगा, एस स्क्वायर एंड माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। एंड प्लस एल इनवर्स ऑफ
5/9 1 s स्क्वायर एंड -5/3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, 1/3 में बाहर ले लेता हूँ। सो यल इनवर्स ऑफ यस अपॉन यस स्क्वायर -5/3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5/9 यल इनवर्स ऑफ 1 यस स्क्वायर -5/3 का होल स्क्वायर। So this is what 1/3, and what is this? This is the inverse of cos hyperbolic function 5/3t and plus 5/3, sorry, 5/9 ये दिस इज द साइन हाइपरबोलिक। तो साइन हाइपरबोलिक क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और कॉन्स्टेंट 1/a लिखते हैं। ये क्या आपका 5/3 है, 5/3 साइन हाइपरबोलिक 5/3t। तो ये आपको क्या मिलेगा इधर से, 1/3 कॉस हाइपरबोलिक 5/3t एंड प्लस 5/9, ये ऊपर जाएगा 3, ये नीचे आएगा 5 साइन हाइपरबोलिक 5/3t। यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1/3 मिलेगा। मैं बाहर निकालता हूँ कॉमन, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक 5/3t एंड प्लस साइन हाइपरबोलिक 5/3t, एंड विच इज योर आंसर। यू गॉट इट? समझ में आया आपको कैसे किया गया? बोलो, समझ में आया क्या आपको? यस नो? यस सर। हम्म, चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आसान प्रॉब्लम थी। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, find the inverse Laplace transform of following. नंबर वन में कैसे हम क्या कैसे करेंगे, चलिए 4s + 15 डिवाइड बाय 16s स्क्वायर -25 एंड सेकेंड वन में आपको बताऊंगा s स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय s⁵। ये दो प्रॉब्लम है आपके लिए होमवर्क। देखिए पहले वाले प्रॉब्लम में क्या करेंगे, सेम जैसे अभी मैंने लास्ट वाला किया, ये वाला जैसे किया ना यहाँ पे, सेम वैसे करेंगे। और ये वाले प्रॉब्लम को क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, एस स्क्वायर -1 है तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, s⁴ फिर -2s स्क्वायर एंड +1 मिलेगा, ठीक है। और ये डिनोमीटर में टर्म है, सभी जगह प्लस साइन है, प्लस और माइनस साइन है, तो इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद एंड वी विल टेक लेप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो उस तरह से आपको मिल जाएगा। गॉट इट? कर लोगे आप ये प्रॉब्लम? हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ये प्रॉब्लम? हाँ सर, ट्राई कर लेंगे। हाँ, चलिए अभी हम शिफ्टिंग थ्योरम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो यूज ऑफ शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम कैसे यूज करेंगे, यूज ऑफ शिफ्टिंग
थ्योरम, यूज ऑफ शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, आपको पता है शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है? पता है कि नहीं? बोलो। नहीं सर। नहीं पता है, चलो पता कर लेते हैं। इफ Laplace transform of the function f of t, लास्ट मॉड्यूल में था शिफ्टिंग थ्योरम, इक्वल टू एफ ऑफ एस। अभी प्रॉब्लम किए थे ना शिफ्टिंग थ्योरम के बेस पे, अब डायरेक्टली बोलते हो नहीं। एंड देन Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी को कैसे लिखते थे? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर में माइनस आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखते थे? प्लस लिखते थे, एफ ऑफ एस प्लस ए। ठीक है, यही तो है शिफ्टिंग थ्योरम। अब इसको इन्वर्स में, इन्वर्स के लिए कैसा करेंगे? देखो ये क्या है, एफ ऑफ टी है ना, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, इसको एल को उस साइड लेके जाओ तो आपको क्या मिलेगा? ये एफ ऑफ टी मिल जाएगा, एंड दिस इक्वल टू एल इनवर्स हो जाएगा। और एफ ऑफ यस, इफ ऐसा है तो आपको क्या मिलेगा? ये इधर से आपको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट ई रेस टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी। ठीक है, दिस इज व्हाट एल इनवर्स ऑफ ए वाला टर्म, एफ ऑफ एस प्लस ए। ठीक है, एफ ऑफ एस प्लस ए। अभी एफ ऑफ टी इज व्हाट एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज ई रेस टू माइनस ए टी एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, और ये किसके इक्वल टू है? एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए के इक्वल है। यही आपका शिफ्टिंग फार्मूला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ फार्मूला मैं लिस्ट करूँगा, लिस्ट ऑफ शिफ्टिंग फार्मूले। तो लिस्ट करता हूँ यहाँ पे, लिस्ट ऑफ शिफ्टिंग फार्मूले, लिस्ट ऑफ शिफ्टिंग फार्मूले। नंबर 1, लिस्ट ऑफ शिफ्टिंग फार्मूले में नंबर 1, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस माइनस बी का होल स्क्वायर एन प्लस ए स्क्वायर। अगर ऐसा है तो इसको मैं कैसा लिखूँगा? ई की पावर यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। ई रेस टू बी टी एल इनवर्स ऑफ, यहाँ से देखो बी का काम खत्म हो गया तो बी हट जाएगा, तो क्या मिलेगा? ओनली 1 अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? ई रेस टू बी टी, दिस इज योर साइन ए टी होता है, 1 अपॉन साइन ए टी, दैट इज साइन ए टी अपॉन ए। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, मैं क्या कर रहा था अभी? सो दिस इज व्हाट ई रेस टू बी टी साइन ए टी। ये देखो इसका मैंने फार्मूला आपको बताया था अभी लास्ट, अभी इसके पहले ही बताया था। कहाँ गया ये? ये देखो इसका। ठीक है, ये एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज 1 अपॉन ए साइन ए टी, वही मैंने लिखा वहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली सपोज यहाँ पे ये साइन का हो गया, अभी सपोज कॉस का, तो एल इनवर्स ऑफ, तो यस माइनस, शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होता है? यस रिप्लेस बाय यस, यस माइनस ये होता है, तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट यस माइनस बी स्क्वायर एन प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ई रेस टू बी टी, कोएफिशिएंट इज नेगेटिव सो एक्सपोनेंशियल विल बी पॉजिटिव। सी द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव है तो एक्सपोनेंशियल पावर विल बी पॉजिटिव। सो दिस इज एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन नहीं, यहाँ पे एस है तो बी यहाँ से चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? खाली एस मिलेगा। सो दिस इज एस अपॉन
s square n plus a square. So after this you will get e raised to bt. And what is the inverse of this? This is simply cos of 80. ठीक है, this is cos of 80. दो. Now number 3, L inverse of. अभी सिमिलरली हाइपरबोलिक के लिए मिलेगा आपको 1 upon s minus b square and minus a square. So this become e raised to bt L inverse of 1 upon s square minus a square. So this become e raised to bt, and this is what sine hyperbolic at by a. ठीक है. Now number 4 L inverse of cos hyperbolic s minus b divided by s minus b the whole square minus a square. So this become e raised to bt and L inverse of s upon s square minus a square. So this equal to e raised to bt. And what is this? This is the cos hyperbolic a t. You got it, cos hyperbolic a t. ठीक है. और now number 5, next shifting formula is what? L inverse of 1 upon s minus b to the power n. And what is this? This is e raised to bt and L inverse of 1 upon s raised to n. And we know the inverse of 1 upon s raised to n. So e raised to bt. And what is the formula for this? This is t raised to n minus 1 divided by n minus 1 factorial. Okay. So these are the listing formula. You must have to remember this. कितने हुए फार्मूले? 5 formulas are there. ठीक है. Now based on this we will do some problem, then you will understand the concept better. चलिए प्रॉब्लम करते हैं. The problems are very simple and very easy. ठीक है, ले लूँ प्रॉब्लम. हाँ सर. चलिए एग्जाम्पल नंबर कितना? एग्जाम्पल नंबर 2 था. एग्जाम्पल 1 के बाद 2. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म of following. Find the inverse Laplace transform of following. चलिए फॉलोइंग कर देते हैं. नंबर 1 में मैं लिखूंगा 6x minus 4 and divide by s square minus 4s plus 20. इसमें एक और मैं लूँगा प्रॉब्लम s plus 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 4s एंड प्लस 7. ठीक है. सॉल्यूशन नंबर 1. व्हाट इज गिवन टू यू? You have given Laplace transform of the function f of t is given, and this is what? 6x minus 4 and divide by s square minus 4s and plus 20. ठीक है. So therefore Laplace transform of f of t is equal to, पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से बात करेंगे. किससे?
पहले हम डिनोमिनेटर से बात करेंगे। डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, ये है यस स्क्वायर माइनस 4s एंड प्लस, इसको 20 को मैं ब्रेक करके लिखता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। 4 + 16 ऐसा मैं लिखूँगा तो कोई दिक्कत आपको, बोलो। नहीं सर। नहीं। और 6s को मैं ऐसे ही करता हूँ, 6s माइनस 4, इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है। तो देयर फोर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 6s माइनस 4 एंड डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिखूँगा, यस माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक को ऐसा होगा। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, एस स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4s एंड प्लस 4 मिलेगा, ये वाला टर्म यहाँ तक मिल जाएगा। तो इसको मैंने ऐसा लिखा है, एंड प्लस 16 को मैं क्या लिखूँगा, 4 का स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको, नहीं दिक्कत। अभी देखो जो यहाँ पे टर्म है ना, ये वाला टर्म अभी मुझे यहाँ पे लाना है यस के साथ, ठीक है। हमको फार्मूला बनाना है शिफ्टिंग का, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो फॉर दिस Laplace transform of f of t for this 6s एंड माइनस, यहाँ पे मैं 12 को अगर ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ऐसा मिल जाने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड माइनस 4, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, एस माइनस 2 का होल स्क्वायर एन प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, 6 में कॉमन लूँगा यहाँ से, तो आपको यहाँ से मिलेगा 6, यस हो गया। यहाँ पे कितने बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 6 × 2 = 12, ठीक है। एंड प्लस, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, 12 माइनस 8 4 कितना होता है, 8 होता है, एंड डिवाइड बाय यस माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, मिल गया। अभी नाउ वी विल सेपरेट दिस, देखो Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी, ओके। Now applying Laplace inverse on both sides. Applying inverse Laplace transform on both sides. Inverse Laplace transform on both sides. ठीक है। सो यहाँ से एफ ऑफ टी मिलेगा और ये एल उधर चला जाएगा, ये एल इनवर्स बन जाएगा। तो 6s माइनस 2 एंड प्लस 8 डिवाइड बाय यस माइनस 2 स्क्वायर एन प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। देखो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे है ना, ये ऊपर भी यहाँ पे होना चाहिए एस के साथ, सेम सेम थिंग होना चाहिए, तभी आप शिफ्टिंग अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, उसके लिए सम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे प्लस साइन है और ये पूरा एक ही टर्म है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो वी सेपरेट दिस, सो आफ्टर दिस यू विल गेट 6 L इनवर्स 6s माइनस 2 डिवाइड बाय यस माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस ए प्लस, आपको कैसा लिखेंगे, यल इनवर्स सेकेंड टर्म 8 डिवाइड बाय यस माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ 6 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालेंगे, 8 भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे। चलो तो फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हम देखते हैं क्या आता है। देयरफॉर एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना था पहले वाले टर्म में, 6 था, तो 6 में बाहर निकालूंगा एल इनवर्स ऑफ यस माइनस 2 एंड डिवाइड बाय यस माइनस 2 एंड प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 8 था यहाँ पे, एंड एल इनवर्स ऑफ 1 यस माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर, यही आएगा, ज़रा चेक कर लो, हाँ, प्लस 4 का स्क्वायर, 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 6, ठीक है। एंड इसमें शिफ्टिंग थ्योरम है, दिस इज द शिफ्टिंग थ्योरम फार्मूला।
सो अप्लाई शिफ्टिंग थ्योरम, तो क्या मिलेगा, ई रेस टू, यहाँ पे बी आपका क्या है, व्हाट इज द बी, बी इज टू टी, एल इनवर्स ऑफ, अभी टू का काम खत्म हो गया, टू हट जाएगा, यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एन प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टू ई रेस टू 2t एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। नाउ अप्लाई दिस, so 6 e raised to 2t, and what is the inverse of this, that is cos 4t and plus 8, and what is the inverse of this, e raised to 2t, inverse of this is what, sin, इसका आएगा sin 4t एंड डिवाइड बाय कितना आता है, 4 आता है, 4 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सो दिस बिकम 6 e raised to 2t cos 4t and 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 e raised to 2t sin 4t, यहाँ से कितना कॉमन आया रहेगा, 2 e raised to 2t में कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, 3 cos 4t and plus sin 4t. So this is your inverse Laplace transform of the given function. समझ में आया कितना आसान था ये सुनो, बोलो। यस सर। चलिए अभी दूसरा का वाला प्रॉब्लम करेंगे। दूसरा वाला प्रॉब्लम कौन सा है, ये वाला है। चलिए देखते हैं कैसा है, क्या है ज़रा बताओ मुझे आप। प्रॉब्लम नंबर 2 गिवन, वो तो बहुत आसान है। गिवन क्या दिया आपको, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज गिवन टू यू, व्हाट इज दैट, एस प्लस 2 एंड डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस 7। ठीक है, यही दिया है। सो देयरफॉर Laplace transform of the function f of t can be written as, पहले हम किससे बात करते थे, पहले हम लोग किससे बात करते थे बताओ, डिनोमिनेटर से, एस स्क्वायर प्लस 4s एन प्लस, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा तो आपको कोई दिक्कत, 4 प्लस 3 7 को मैं ऐसा लिखूंगा, आपको दिक्कत कोई बताओ, ये सुनो। और यहाँ पे एस प्लस 2 ऐसे ही लिखो, रहने दो। ठीक है, अभी देखो, so therefore Laplace transform of the function f of t this equal to, मैं इसको डिनोमिनेटर से बात करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा, कोई दिक्कत आपको। ठीक है, इस टर्म को मैंने क्या लिखा, एस प्लस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे 3 है, तो 3 को मैं अगर मैं ऐसा लिखूंगा √3 का होल स्क्वायर, तो आपको दिक्कत कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो वापस 3 ही मिलेगा, और ऊपर क्या है आपका, एस प्लस 2 ही है। ठीक है, बन गया फॉर्म आपका शिफ्टिंग का। नाउ अप्लाइंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, सो अप्लाइंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन both sides, we get f of t equal to L inverse of s plus 2 divided by s plus 2 and plus √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ई रेस टू, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा 2t। ठीक है, शिफ्टिंग में इस, अगर माइनस है तो प्लस में आता है, प्लस में है तो माइनस में आता है, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और आपको क्या मिलेगा, एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर, ए स्क्वायर है,
एस स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं क्या लिखूँगा, e⁻²t, एंड what is the इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज व्हाट, प्लस साइन है तो कॉस आएगा, कॉस √3 एंड t, ठीक है। एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। यू गॉट इट, कितना आसान था ये। चलिए फाइंड एग्जांपल नंबर हाउ मच, एग्जांपल नंबर 3 बोलो कि ना, हाँ 3 3, 3 हाँ Sir, 4. 4, एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग। Find the inverse Laplace transform of following. Number one 3s minus 7 divided by s square minus 6s plus 8. नंबर टू मैं आपको देता हूँ यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s n प्लस 2। ये दो प्रॉब्लम है आपके लिए, आप ज़रा इसको ट्राई करो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इससे एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, वेन एवर पॉसिबल वी एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन हियर 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 वेन एवर पॉसिबल, whenever possible we express the given function, given express the given function, given function, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ एस, given function f of s into the sum of linear or quadratic fraction, linear or quadratic function, quadratic function as like this, as like this, f of s and this equal to, इसको मैं कैसे लिखूंगा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, a अपॉन s प्लस a रेस टू r एंड प्लस bs प्लस c डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेस टू r, ठीक है। एंड देन यूज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, then use the standard result and use the standard result, find A inverse, use the standard result to find L inverse,
इसका मतलब क्या है देखो, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर एंड क्वाड्रेटिक? लीनियर मीन्स व्हाट, सपोज आपको इसका पावर ए है, सपोज आपको फंक्शन ऐसा दिया हुआ 1 अपॉन यस माइनस ए और यस प्लस ए, ये क्या है, लीनियर फैक्टर है, क्यों, इसका पावर 1 है तो ये क्या है, लीनियर है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मीन्स क्वाड्रेटिक मीन्स यस का पावर आपका 2 होगा, ठीक है, यस का पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक में जैसे ऊपर कोई भी ऊपर कुछ होने दो, इससे मतलब नहीं, हमको नीचे से डिनोमीटर से मतलब है। सपोज डिनोमीटर में आपका है यस स्क्वायर प्लस 2s एन प्लस 1 है, ठीक है। ये कैसा पावर है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो कैसा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ए वाला यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सपोज s प्लस 3 कुछ भी रहने दो, तो इसको मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगा, बी एस प्लस सी डिवाइड बाय ए वाला टर्म, यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ठीक है। अगर s का पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन में आता है, अगर s का पावर 1 है तो लीनियर फैक्टर में आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बेस पे प्रॉब्लम करेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर कितना है, 5। चलिए फटाफट करते हैं प्रॉब्लम। फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग। नंबर वन में मैं लिखूंगा यस प्लस 1 डिवाइड बाय यस स्क्वायर माइनस 4। नो सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन फटाफट हम करेंगे। व्हाट इज गिवन टू यू, आपको क्या दिया है, लेप्लास दिया है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज गिवन टू यू, दैट इज व्हाट, यस अपॉन सॉरी यस प्लस 1 डिवाइड बाय यस स्क्वायर माइनस 4। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको मैं लिखूंगा ये दिया है तो इसको मैं लिखूंगा यस प्लस 1 डिवाइड बाय इसको यस माइनस यस माइनस 2 1 ब्रैकेट एंड यस प्लस 2 1 ब्रैकेट, ऐसा क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा तो ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्म में, ठीक है। ये ऐसा है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। अभी अभी देखो क्या करेंगे, यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी, ठीक है। ये आपको कितना दिया है, आपको दिया है यस प्लस हाउ मच, यस प्लस 1, यस प्लस 1 डिवाइड बाय यस माइनस 2 एंड यस प्लस 2, यस माइनस 2 एंड यस प्लस 2। इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा, ए डिवाइड बाय लीनियर फैक्टर नीचे वाला टर्म यस माइनस 2 एंड प्लस बी सेकेंड वाला टर्म यस प्लस 2 ए वाला, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब क्या मिलेगा, यस प्लस 2 ए एंड प्लस यस माइनस 2 बी एंड डिवाइड बाय हाउ मच, यस माइनस 2 एंड यस प्लस 2 वाला प्रोडक्ट। इसको मैं क्या लिखूँगा, यस प्लस 1 एंड डिवाइड बाय यस माइनस 2 एंड यस प्लस 2, ठीक है। ये दोनों देखो सेम है, डिनोमीटर ये वाला, ये डिनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा देयरफॉर यस प्लस 1 इक्वल टू यस प्लस 2 ए मिल गया एंड प्लस यस माइनस 2 बी मिल गया, ठीक है। अभी इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए अगर हम यस इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी, देयरफॉर पुट
एस इक्वल टू 2. सो दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिलेगा 2 + 1 एंड दिस इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा 2 + 2 a and plus 2 minus 2 b. So this gives 2 + 1 that is 3 and this equal to 4a and plus 2 minus 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा a इक्वल टू 3/4 मिल गया. a is 3/4. Now also put s इक्वल टू -2. अगर s इक्वल टू -2 यहाँ पे डालेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकल जाएगा. तो यहाँ पे डालो, तो दिस इम्प्लाइज दैट -2 + 1 इक्वल टू -2 + 2 a एंड प्लस -2 - 2 b. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा दिस इक्वल टू -2 -1 यहाँ पे मिलेगा एंड दिस इक्वल टू 0 2 - 2 0 एंड माइनस यहाँ से 4 हो जाएगा 4 b. तो b यहाँ से आपको क्या मिलेगा b इक्वल टू 1/4. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर स्टार. इसको इक्वेशन नंबर स्टार दे दो. पुटिंग values of a and b in इक्वेशन स्टार. we get आपको क्या मिलेगा we get Laplace transform of the function f of t and this equal to a की वैल्यू क्या है हमारा a की वैल्यू आया 3/4 and divide by s -2 and प्लस b की वैल्यू कितना आया 1/4. b की वैल्यू 1/4 आया और s + 2 आएगा. therefore applying inverse Laplace transform on both sides. So applying inverse Laplace transform on both sides. Okay, we get इनवर्स अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा एफ ऑफ टी यहाँ से मिल जाएगा एफ ऑफ टी एंड दिस इक्वल टू 3/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 3/4 यल इनवर्स ऑफ ऊपर क्या मिलेगा s -2 आएगा एंड प्लस 1/4 कांस्टेंट है बाहर ले लो और यल इनवर्स ऑफ यहाँ से क्या मिलेगा 1/s + 2 आएगा. ठीक है, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ. सो 3/4 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस इज e⁻²t क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा एंड प्लस 1/4 यहाँ पे क्या मिलेगा e⁻²t. ठीक है, अगर यहाँ से 1/4 कॉमन लेना चाहते तो ले लो. 1/4 मैंने निकाल लिया. सो 3e⁻² प्लस e⁻²t. ओके, सो दिस इज योर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. यू अंडरस्टूड दिस हाउ टू सॉल्व? बोलो, समझ में आपको? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है, ये तो आपका लीनियर फैक्टर था. उसके बाद क्वाड्रेटिक का मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा.